जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और यहां भी देख रहे हैं कि मोहक मंगल, जो कि इंडिया के एक मशहूर यूट्यूबर है, ने कल एक वीडियो बनाकर बताया कि इंडिया की न्यूज एजेंसी एनआई ने उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजी थी उनकी कॉपीराइटेड प्रोडक्शंस की कुछ सेकंड्स की क्लिप्स इस्तेमाल करने पर। और वो यानी कि एनआई उनसे 45 लाख इंडियन रुपीस का तकाजा कर रहे हैं और बदले में अपनी स्ट्राइक्स वापस लेने की रजामंदी जाहिर कर रहे हैं। अब ये सारा मामला क्या है, ये जानने के लिए आपको मोहक मंगल की वो वाली पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन एक चीज जो मैंने मोहक मंगल की उस वीडियो में नोट की, मैं उसके बारे में यहां बात करूंगा। ये एक और मशहूर इंडियन यूट्यूबर है जिनका नाम पौरुष शर्मा है। सॉरी अगर मैं इनका नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाया। अ फ्यू वीक्स अगो इन्होंने भी बताया था किसी ने इनको कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजकर बाद में कोई 20 लाख, अगर मुझे सही याद है, मांगा था स्ट्राइक्स वापस लेने के लिए। इन्होंने नाम नहीं लिया था उसका जिसने इनको स्ट्राइक्स भेजी थी। इन्होंने भी और मोहक मंगल ने भी अपनी अपनी वीडियोस में फेयर यूज की टर्म का इस्तेमाल किया है, ये बताते हुए कि ये समझते थे कि इनका दूसरी वीडियोस की फ्यू सेकंड्स की क्लिप्स का इस्तेमाल करना फेयर यूज में आता है। अब फेयर यूज की जो टर्म है वो अमेरिकन कॉपीराइट लॉ में इस्तेमाल होती है, ना कि इंडियन कॉपीराइट लॉ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यूएस कॉपीराइट ऑफिस की ऑफिशियल GOV डोमेन वाली वेबसाइट के फेयर यूज पेज पर हूं। यहां फेयर यूज टर्म का इस्तेमाल देखा जा सकता है और ये इंडियन कॉपीराइट ऑफिस की ऑफिशियल GOV डोमेन वाली वेबसाइट का फेयर डीलिंग को एक्सप्लेन करने वाला पेज, जहां फेयर डीलिंग की टर्म इस्तेमाल हुई है। लेकिन क्या ये सिर्फ टर्म्स का फर्क है? गूगल सर्च के जेनरेटिव AI को माने तो नहीं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा जो टेक्स्ट अगले स्क्रीन पर नजर आएगा। इन बोथ अमेरिकन एंड इंडियन कॉपीराइट लॉ, there are exceptions to copyright infringement, allowing for certain uses of copyrighted material without permission. In the US, this is known as fair use, while in India, it's called fair dealing. While both doctrines share similarities in allowing for some uses of copyrighted work for specific purposes, there are key differences in their scope and application. Key differences. Scope. US fair use is generally considered broader and more flexible than Indian fair dealing. Fair use in the US is not limited to specific, enumerated purposes like fair dealing in India. Judicial interpretation. Fair use in the US is determined through a case-by-case analysis, considering 4 factors: purpose and character of the use, nature of the copyrighted work, amount and substantiality of the portion used, and the effect of the use on the potential market. Indian fair dealing, while also considering these factors, is often more narrowly defined, with a focus on specific purposes outlined in the statute. Enumerated purposes. Indian fair dealing explicitly lists permitted uses, including private or personal use, research, criticism, and review. US fair use, while also allowing these uses, is not limited to them and can apply in other contexts. Statutory framework. The US fair use doctrine is enshrined in Section 107 of the Copyright Act. Indian fair dealing is found in Section 52 of the Copyright Act. In summary, fair use, US, is broader and more flexible, requiring a case-by-case analysis. Fair dealing, India, is more narrowly defined, with specific statutory purposes for permitted use. For more helpful explanation, consider including few examples. Example 1. A scholar using excerpts from a book for research purposes would likely be protected under both fair use and fair dealing. Example 2. A critic using a short quote from a movie for review would also be covered by both doctrines. Example 3. Parody, which is a common example of fair use in the US, might be more difficult to justify under the more specific fair dealing doctrine in India. Important note here, AI responses may include mistakes. मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो के आखिर में एक बिग रेवलेशन है। तो बजाहिर लगता है अमेरिका के फेयर यूज और इंडिया के फेयर डीलिंग में फर्क है। लेकिन क्या इसी फर्क की वजह से मोहक मंगल, पौरुष शर्मा और दीगर को कॉपीराइट स्ट्राइक्स पढ़ना लाजमी सी बात थी? यानी स्ट्राइक देने वाले के साथ इंडियन लॉ खड़ा था। क्या किसी इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में फैसला स्ट्राइक देने वाले के हक में आएगा? आई एम ऑलमोस्ट सर्टन के ऐसा नहीं है। समझाता हूं क्यों। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ लॉयर एंड दिस इज नॉट अ लीगल एडवाइस इन एनी वे, शेप और फॉर्म।
हम इंडियन कॉपीराइट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के फेयर डीलिंग को एक्सप्लेन करने वाले पेज पर एक बार फिर मौजूद है। यहां साफ देखा और समझा जा सकता है कि इंडियन कॉपीराइट लॉ क्लियर है फेयर डीलिंग के बारे में। यहां साफ लिखा है, मैं कुछ हिस्सा इंग्लिश में और कुछ हिंदी या उर्दू में पढ़ूंगा। एक्सेप्शंस टू इन्फ्रिंजमेंट अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। द कॉपीराइट एक्ट 1957 provides for certain exceptions to infringement of copyright. Under Section 52, the provision permits limited use of copyright material without the owner's authorization. यानी इंडिया में कॉपीराइट लॉ कब कब इजाजत देता है किसी दूसरे के कॉपीराइटेड काम का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करने को। सेक्शन 52 या 52 कहता है कुछ काम ऐसे हैं जो कॉपीराइट लॉ को ब्रेक नहीं करते। The following acts shall not constitute an infringement of copyright. Namely, वो काम कौन कौन से हैं? 1. Private or personal use, including research. 2. Criticism or review, whether of that work or of any other work. मोहक मंगल, पौरुष शर्मा और इनके जैसे वीडियोस बनाने वाले इस पॉइंट में कवर हो जाने चाहिए। 3. The reporting of current events and current affairs, including the reporting of a lecture delivered in public. अच्छा, ये पेज नीचे भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन दूसरे पॉइंट्स जैसे टीचर्स और प्रोफेसर्स को क्लासरूम में कॉपीराइटेड वर्क का यूज अलाउ है कि नहीं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए काम करती है उनको अलाउ है कि नहीं, वो सब और दूसरे पॉइंट्स पे बात करता है। द रेलेवेंट सबसेक्शन ऑफ 2 इज क्लियर। मोहक मंगल की वीडियोस क्रिटिसिज्म और रिव्यू में ही आती है, वेरी पॉसिबली लीगली एज वेल। सो ऐसा लगता है कि इंडियन कॉपीराइट लॉ में मोहक मंगल और पौरुष शर्मा जैसे यूट्यूबर्स का काम फेयर डीलिंग के तहत प्रोटेक्टेड होगा, और कोई अगर उनके वीडियोस पर यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजता भी है तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। पर यूट्यूब कहता है वो हर भेजी जाने वाली स्ट्राइक को रिव्यू करने के बाद कंटेंट क्रिएटर को बताता है कि उसकी वीडियो डिलीट की जा रही है और 3 स्ट्राइक्स पे चैनल डिलीट हो जाएगा 7 दिनों बाद। तो जब YouTube कंटेंट क्रिएटर को इन्फॉर्म करता है कि आपकी वीडियो कॉपीराइट वायलेशन करने की वजह से डिलीट की जा रही है और 3 स्ट्राइक्स पे चैनल 7 दिनों बाद डिलीट कर दिया जाएगा, कंटेंट क्रिएटर समझता है कि जब YouTube ने रिव्यू किया होगा तो बिल्कुल सही किया होगा और वाकई उससे कॉपीराइट की वायलेशन हुई है। ऐसा लगता है मोहक मंगल, पौरुष शर्मा, वो बड़ा यूट्यूबर जिसके बारे में मोहक ने अपनी वीडियो में बताया था कि उसने 50 लाख दिए कॉपीराइट स्ट्राइक सेंडर को, और दूसरे कॉपीराइट स्ट्राइक रिसीविंग यूट्यूबर्स से यही एक बहुत बड़ी गलती हुई। टाइम फॉर रेवलेशन फॉर दोज यू वांट अवेयर। यूट्यूब डिसाइड नहीं करता कि फेयर यूज या फेयर डीलिंग अप्लाई होता है या नहीं, वो सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक सेंडर के क्लेम को चेक करता है कि अगर 1 या 2 सेकंड्स का भी कॉपीराइटेड कंटेंट यूज हुआ है तो स्ट्राइक लगा देता है। प्रूफ ये रहा, गूगल सर्च का जेनरेटिव एआई जो कि मिस्टेक कर सकता है, पर ये इंफॉर्मेशन वो यूट्यूब के हेल्प पेज से लेकर दे रहा है। इस बारे में कहता है, नो, YouTube does not independently determine fair use after a copyright strike is issued. YouTube relies on the copyright owner's claim and, if the claim is valid, will remove the video to comply with copyright law. YouTube does not investigate fair use claims on a case-by-case basis. Instead, the platform provides mechanisms for creators to dispute the claim, such as filing a counter notification. नीचे मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं YouTube के उस हेल्प पेज पर। यह है वो पेज। इस पे जो वीडियो रखी है ये YouTube के अपने ऑफिशियल YouTube क्रिएटर्स नामी चैनल की है। इस वीडियो का सबटाइटल मैंने ऑन कर दिया है और वॉइस भी ऑन कर रहा हूं। इस पूरी वीडियो का सिर्फ वो हिस्सा प्ले करूंगा जहां YouTube की ये ऑफिशियल बताती है कि YouTube does not Fair use determine allows you to fair use. reuse copyright protected material under certain circumstances without getting permission from the copyright owner. Fair use is an exception to copyright law and is not determined by YouTube. Let me say that again. YouTube does not decide what is fair use and what isn't. Only the court can do that. YouTube की ये ऑफिशियल जोर देकर कहती है, Let me say that again. YouTube does not decide what is fair use and what isn't. Only the court can do that.
तो आपने देखा यहाँ हो क्या रहा है। स्ट्राइक सेंड करने वाला स्ट्राइक सेंड कर सकता है, भले से आपने उसके कंटेंट का यूज फेयर डीलिंग के अंडर ही क्यों ना किया हो। और YouTube ये नहीं देखेगा कि आपका यूज फेयर डीलिंग था या नहीं, बल्कि स्ट्राइक सेंडर का साथ देते हुए ये स्ट्राइक एनेबल कर देगा, और अगर 3 स्ट्राइक्स होगी तो आपका चैनल डिलीट और आपको बैन भी कर सकता है। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस। अगर आप मोहक मंगल, पौरुष शर्मा और उन बिग यूट्यूबर जिन्होंने 50 लाख दे दिए हैं कि कंटेंट जैसा कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर है, और आपको यकीन है कि आपका कॉपीराइटेड मटेरियल को इस्तेमाल करना फेयर डीलिंग के अंदर आता है, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले किसी इंडियन कॉपीराइट लॉ एक्सपर्ट, लॉयर, कॉपीराइट लॉ एक्सपर्ट कीवर्ड है, से बात करनी चाहिए और उसके सामने ये बात रखनी चाहिए कि इंडियन फेयर डीलिंग सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 क्लियरली ये कहता है, पर स्ट्राइक सेंडर ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्ट्राइक भेज दी है। एक से ज्यादा लॉयर्स का ओपिनियन लेना पड़े तो ले ले। अगर लॉयर्स अग्री करें कि इन अ कोर्ट ऑफ लॉ यूड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, तो आप यूट्यूब के बताए हुए कॉपीराइट क्लेम को काउंटर करने के तरीकों पे अमल करें, लास्ट ऑफ विच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज फाइलिंग अ काउंटर नोटिफिकेशन। ऐसी सिचुएशंस में स्ट्राइक सेंडर के साथ कन्फ्रंटेशनल होना या कंप्लाई कर जाना दोनों एडवाइजेबल नहीं। यूट्यूब की पॉलिसी जैसी भी है, उसका वैलिड रीजन है उसके पास। इन द jurisdiction of a country, the law of the land reigns supreme, not policies of corporations. Good thing is there's something called fair use or fair dealing in the law. And if you followed the law, used only small bits of others' copyrighted content in your critic or review, odds are you are safe. Besides, the fact that any copyright strike sender wouldn't take you to court and instead exploit YouTube's platform to send you copyright strikes and later ask you to pay up, all out of court, tells you a little something about them having some idea their copyright claim won't likely stand in a court of law, which is the ultimate authority to decide whether your use of their work falls under fair dealing or not. तो मेरे लेमन्स ओपिनियन में यहाँ कोई कॉपीराइट वायलेशन हुई ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूं उन बिग यूट्यूबर को लॉयर्स का एक्सेस होगा और उनकी टीम में बहुत काबिल और समझदार मेंबर्स होंगे, आई एम श्योर। हाउ कम देन ही एंडेड अप पेइंग 5 million that he needed not to in the first place? There might be a way he could legally get the money back. I don't know. Finally, जिनका ध्यान मेरे चैनल के नाम की तरफ गया और अगर वो सोच रहे हैं कि उनके अंगने में मेरा क्या काम है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से I just like reading stuff up. चाहे मुझसे जुरी हो या नहीं. Gaining different sorts of information, even apparently irrelevant one, is like opium for me. I can't help it. In case आप मेरी फजूल की रीडिंग हैबिट से हासिल शुदा इंफॉर्मेशन जाना चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ कुछ दिलचस्प मालूमात जो मुझे कहीं पढ़ने को मिलेंगी, वीडियो की फॉर्म में शेयर करना शुरू करने वाला हूँ।